हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टिल कनेक्टिव टिश्यू एंड वी हैव सीन कि व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू एंड हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शंस। देयर आर डाइवर्स टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन कैरी आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कुछ कनेक्टिव फंक्शन करते हैं, तो कुछ फ्रेमवर्क बनाते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। Now we'll move on to the third type of tissue, animal tissue, that is the muscular tissue. Now ये जो muscular tissue होता है ये highly specialized tissue होता है. This is a kind of highly specialized tissue, and as from the name it is suggested कि this tissue is basically for the contraction and relaxation mechanism. ठीक है, इसीलिए muscular tissue जैसे muscles आपके function करते हैं. Okay, so let's begin this topic. So as you can see on the screen right now, each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. तो बहुत सारे मसल फाइबर्स elongated लेंथ वाइज वो लोग प्रेजेंट होते हैं, सिलिंड्रिकल फाइबर्स होते हैं जो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं. अगर आप एक मसल को देखेंगे वो तो कंप्लीटली सेल से नहीं बना होता, इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स. ओके, सो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस काइंड ऑफ टिश्यू कि इनका जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो कोई सेल नहीं होता है, वो फाइबर्स होते हैं. These fibers are composed of numerous fine fibrils called as myofibrils. So as you can see in this diagram below, that each of the fiber is having small small bundles of fibers. ये आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे bundle of fibers हैं और एक bundle को हम बोलते हैं myofibril. Each of that bundle is called as myofibril. Now inside this we will find कि there are small units called as sarcomere. तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे इस टॉपिक में बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स अगेन इन द चैप्टर ऑफ योर मस्कुलर सिस्टम, दैट इज अ लोकोमोशन. तो देयर विल बी डिस्कसिंग इन विविड डिटेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मसल, बट फॉर द टाइम बिंग आप इतना याद रखिए कि दिस muscle are made up of very very fine tube like fibers which are called as myofibrils. The muscle contracts or shortens and relax or lengthens, which help in the movement of body parts and organs and in locomotion. तो ये body parts का movement as well as locomotion में help करता है. Basically muscles वही function करते हैं. They help in the movement of the body parts as well as in locomotion. Locomotion means movement of the individual from one place to another. जबकि हम लोग मूवमेंट जब बोलते हैं तो वो सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ बॉडी पार्ट हो सकता है. तो हम जो मूवमेंट्स करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं वो सब बिकॉज ऑफ मसल्स ही पॉसिबल होता है. नाउ कीपिंग दैट इनटू माइंड, हम लोग मसल्स को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. द मस्कुलर टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन द स्केलेटल मसल, सेकंड स्मूथ मसल, थर्ड कार्डियक मसल. ओके, तो पहला वाला स्केलेटल मसल है, नाम से ही पता चल रहा है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होता है. दूसरा वाला स्मूथ मसल, we call it a smooth muscle because they are smooth in appearance and they are not connected to any kind of hard structure. They are not connected to the skeletal system. Last one is the cardiac muscle, very specialized kind of muscle which is only present in the heart. तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया cardiac muscle. तो let us see into this one by one. सबसे पहला वाला है आपका skeletal muscle. Okay, so let us see what skeletal muscles are. Here as you can see in the picture, so these are your bones and these muscles are attached to the bones. So on the right hand side you can see the muscles how they are attached to the bones, and on the left hand side the bones to which these muscles are attached. Skeletal muscle tissue is closely attached to the bones. तो skeletal muscle tissue क्या होता है, ये बहुत closely attached होता है skeletal bones के साथ, हमारे बोन्स के साथ वो अटैच होता है और यही लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करता है. बेसिकली देखिए आपका स्मूथ मसल कार्डियक मसल वो आपको लोकोमोशन में हेल्प नहीं करेगा. बेसिकली द स्केलेटल मसल्स टू ए सीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर. तो ये जो मसल फाइबर होते हैं सबको बांध के रखता है एक शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. शीथ मतलब एक लेयर, एक लेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू का जो ये सारे मसल फाइबर्स को बांध के रखता है एंड दे फंक्शन टुगेदर, वो एक साथ फंक्शन करते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल हो पाता है. Now, ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं द स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन पैरेलल फैशन इन बाइसेप्स. यहाँ पे बाइसेप्स दिया हुआ है बट इन ऑल द बॉडी पार्ट्स, बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, क्वाड्रिसेप्स हो गया, आपके पेक्टोरल मसल्स हो गए, आपके लेटिसिमस मसल हो गए, ये सारे मसल्स जो भी आप देखते हैं वो किसी ना किसी तरीके से स्केलेटल सिस्टम के साथ ही जुड़े होते हैं.
और ये जो स्केलेटल मसल होता है इनको कभी कभी हम लोग स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं. Okay, they are called as striated muscles. The reason is they are straight, parallelly running lines. तो अगर इन मसल्स को आप लोग देखोगे तो ये देखो parallelly running lines की तरह एग्जिबिट होते हैं, straight होते हैं. They're straight and parallel like this, इसलिए इनको बोला जाता है striated muscles. ठीक है. अब इसको कंपेयर करते हैं हम दूसरे मसल के साथ, which is your smooth muscles. Now smooth muscles they are also called as non-striated muscles. ठीक है, इनको non-striated बोलते हैं. They are called as non-striated muscles. Sorry. तो ये जो non-striated muscles होते हैं, they are not striated, मतलब they are not parallelly running. As you can see in the picture here, they are not parallel to one another. They cross, they overlap one another sometimes as well. Now the smooth muscle fibers taper at both the ends and are thick at the center. That is called as fusiform. अगर इनका cellular arrangement आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह का होता है. The ends will be tapering and the center will be little bit bulged out. Okay, and the nucleus will be present somewhere here at the center. तो इस टाइप के सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे इन स्मूथ मसल्स. दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजिफॉर्म. दे डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, उनमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं होता या फिर लाइन स्ट्रक्चर्स उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे. द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन और द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स, स्टोमक कंटेन्स स्मूथ मसल और मसल टिश्यू. तो ये जितने भी आपके स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं, स्टोमक हो गया, इसोफेगस हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, गर्ल ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ऑल दिस काइंड ऑफ ऑर्गन्स, उनके वॉल में आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलेगा. ठीक है. बेसिक फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन एक्सपैंड, राइट. नाउ दीज मसल्स, स्मूथ मसल्स, आर जनरली इनवॉल्यूंटरी इन नेचर. स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंटरी होते हैं, मतलब दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ओन विल. आपके विल में नहीं होते हैं, ऑटोमेटिकली वो लोग फंक्शन करते हैं. लेकिन स्केलेटल मसल्स में आप देखेंगे कि देयर इज ए कंट्रोल मैकेनिज्म बाय योर विल. दैट मींस वो लोग वॉल्यूंटरी होते हैं. सो रिमेंबर दिस, ये एक बेसिक डिफरेंस होता है स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल के बीच में. स्केलेटल मसल्स आर वॉल्यूंटरी इन नेचर, whereas smooth muscles are generally involuntary in nature. Okay. Then the third type of muscle is cardiac muscle. The word cardia literally means heart. So cardiac muscles are muscle tissue which are present only in the heart. ये सिर्फ heart में दिखाई देते हैं. They're not seen in any other part of your body. Okay. So when you magnify a part of your heart, you'll find this kind of muscles will appear. तो ये देखो striated हैं, लंबे लंबे straight lines की तरह हैं, parallelly running lines हैं. They are branched, they have certain branchings, but they are parallel to one another. Though they look like striated muscles or skeletal muscles, but they are involuntary in nature. तो इसीलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं ये जो कार्डियक मसल्स हैं इनमें दोनों का प्रॉपर्टी होता है. वो स्ट्रिएटेड होते हैं लाइक स्केलेटल मसल और इनवॉल्यूंटरी होते हैं लाइक द विसरल मसल्स. तो यही पॉइंट हमने नेक्स्ट मेंशन किया है. दे आर इनवॉल्यूंटरी इन नेचर. ये लोग इनवॉल्यूंटरी होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. आपका हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं होता है. Like take the example, normal human heartbeat is 72 times per minute. You cannot control it. आप मन करके उसको 100 beats per minute नहीं बना सकते हो या फिर 40 beats per minute नहीं बना सकते हो. You cannot increase it or decrease it by your own will. वो अपने आप ही function करता है, तो involuntary होता है. Okay, so that point you need to remember in this कि they are striated but involuntary. Cell junctions fuse the plasma membrane of cardiac cells and make them stick together. तो ये जो सेल जंक्शंस होते हैं ये सारे जोड़ के रखते हैं. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं कार्डियक मसल्स के, सबको जोड़ के रखते हैं. दे फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट. दिस मसल्स फंक्शन फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ. ये आपके बॉडी में एक ऐसा मसल है, दिस इज द ओनली मसल इन फैक्ट व्हिच फंक्शंस फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ विदाउट फैटिग, विदाउट गेटिंग टायर्ड, विदाउट स्टॉपिंग, कॉन्टिन्यूसली फंक्शन करता है. और अगर किसी तरह से ये मसल्स डैमेज होने लगे, दैट विल कॉज हार्ट इश्यूज and sometimes can cause death due to cardiac arrest. So that is the reason कि ये जो muscles हैं बहुत बहुत vital होते हैं हमारे body के functioning के लिए, हमारे survival के लिए. So these are the three different kinds of muscle, students. That is your skeletal muscles, the smooth muscles, and the cardiac muscles. Now we are remaining with only one of the tissue, animal tissue. That is your neural tissue. Now neural tissue, इसको भी ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है आपका.
न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू रख लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। द न्यूरल टिश्यू exerts द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रेस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशंस। तो बेसिकली बोला जाए तो ये जो न्यूरल टिश्यू होते हैं ये टाइप के, दे आर ए काइंड ऑफ इम्पल्सिव टिश्यू, मतलब दे जनरेट इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, वो लोग नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। They transmit signal from the body to the brain or the CNS and from the CNS central nervous system to the body। तो ये एक ट्रांसमिटिंग फंक्शन करते हैं और ये ट्रांसमिशन होता है एज ए रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंट और टू द चेंजिंग कंडीशन। हम तभी रेस्पॉन्ड करते हैं जब हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा फिजिकल, हमारा केमिकल सराउंडिंग चेंज होता है, ठीक है। तो दैट इज वेयर यू विल फाइंड दिस न्यूरल टिश्यूज फंक्शन। Now they are made up of small units or cells called as neurons. Small तो नहीं बोल सकते, they are the longest cell in fact, to be more specific. The neurons are the unit of neural system, are excitable cells and neuroglial cells which constitute the rest of the neural system. They protect and support the neurons. तो ये protect और support करते हैं neurons को कौन? Neuroglial cells. So neuroglial cells, they are kind of supporting cells in the nervous system you can say, एंड इनका जो काम होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिजिग्नेटेड नहीं होता जैसे आपके न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स दे ट्रांसमिट सिग्नल्स एंड दे आर एक्साइटेबल। यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं एक्साइटेबल, इसका मतलब ये है वो तभी एक्टिवेट होंगे जब इनको कोई एक न्यूरल सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज दे विल बी ऑलमोस्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। उसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग इन द चैप्टर ऑफ न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। सो जनरली वो लोग जब एक्साइटेड होते हैं तभी फंक्शन करते हैं, इसलिए उनको एक्साइटेबल सेल्स बोला जाता है। Now you'll find the next point that we have mentioned here, when a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane। तो जब ये एक्साइटेड होते हैं या फिर जब भी कोई नर्व इंपल्स आता है या फिर जब भी कोई स्टिमुलस जनरेट होता है तो ये न्यूरॉन्स सडनली एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर। देयर विल बी चेंज ऑफ आयोनिक चार्जेस, the sodium ion, potassium ion, they will move across the membranes and that will generate a kind of electric charge, and it will appear like this electric charge is moving from one part of the neuron to another। तो इसको हम लोग बोलते हैं impulse, that is called as neural impulse। So that is what the function of this structure is। The arrival of the disturbance at the neuron endings cause the stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells। तो ये वही होता है जो पॉइंट हमने पहले ही मेंशन किया कि आपका जो न्यूरल सिग्नल होता है वही किसी ना किसी प्रोसेस को इनिशिएट करता है या फिर किसी ना किसी प्रोसेस को इनहिबिट करता है ना। नीचे एक डायग्राम दिया गया है ऑफ द न्यूरॉन, जस्ट ब्रीफली लेट्स सी व्हाट दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स। द होल न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द मेन सेल बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज सोमा और साइटोन, इसको साइटोन भी बोला जा सकता है, यू कैन राइट इट डाउन हियर स्टूडेंट्स। द सेल बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज सोमा और द साइटोन, ठीक है। द डेंड्रॉन, द आर्म लाइक एक्सटेंशंस, ये जो आर्म लाइक ब्रांचिंग्स हैं इनको डेंड्रॉन्स बोला जाता है। और ये जो आर्म लाइक ब्रांचिंग्स हैं डेंड्रॉन्स, उनके टिप में रूट लाइक एक्सटेंशंस हैं, सो ये रूट लाइक एक्सटेंशंस होते हैं डेंड्राइट। डू नॉट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, द आर्म्स आर कॉल्ड एज डेंड्रॉन्स एंड द रूट लाइक एंडिंग्स आर कॉल्ड एज डेंड्राइट। ना ये जो सोमा या फिर साइटोन होता है, सेल बॉडी होता है, उसका एक लंबा सा एक्सटेंशन होता है व्हिच फॉर्म्स द एक्सॉन, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के 3 पार्ट हो गए, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन, ठीक है। तो ये एक्सॉन जो होता है ये एक इफेरेंट प्रोसेस होता है, मतलब सिग्नल विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। तो सिग्नल ट्रांसमिशन जनरली इस डायरेक्शन में होता है। द सिग्नल विल बी रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट हेड्स हियर and the signal will be transmitted along the axon to the nerve endings at this point। So that is how the signal is transmitted, and this is unidirectional. Always remember students, signal is transmitted from the dendrites to the nerve endings or to the tip of the axon। Now some of these axon might be covered by a protein covering called as myelin sheath, जो यहाँ पे हमने येलो कलर में दिखाया है। तो ये जो माइलिन शीथ होता है ये कवरिंग होता है ओवर द न्यूरॉन्स, इट्स अ प्रोटीनेशियस कवरिंग, and they also possess certain specialized cells called as Schwann cells। Now the neurons having the myelin sheath are called as myelinated neurons, and the neurons without the myelin sheath are called as non-myelinated। तो हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं न्यूरॉन्स को, द myelinated neurons having myelin sheath and the non-myelinated neurons without
the myelin sheath. So this is a very brief overview of the structure of the neuron. So with this, student, we complete the four different kinds of animal tissue, that is your epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and the neural tissue. Okay. Thank you everyone.